This is what a great master does. He sees the divinity hidden. Not only he feels divinity. Sri Ramakrishna Paramahamsa, the great teacher of Swami Vivekananda, he was very fond of mythological dramas, Ramayana, Mahabharata, based on epics. So in Calcutta, in those days, there was a great dramatist, Girish Ghosh. He was actor, producer, director, those days all in one. So he used to go to see his dramas. Then somebody whispers, "Sir, you are a very holy person. You are going to see his drama. Maybe on the stage he acts like God, Rama and Krishna. But off the stage, even in between when dialogues are going on and music is there, he goes behind the curtain and drinks and again comes and acts. So you should not go to such person." Not only he is alcoholic, he is the embodiment of all the evils of those days. Those days there are no drugs. But he is a drunkard, womanizer, gambler. Your holy name will be affected. Now anybody else will be afraid, "Oh, my name will be spoiled, I should not go." But great masters like Buddha are great. They are full of compassion. Like a mother helps more the weak child, the handicapped child. He felt very sorry. On stage he is like a god and his personal life is chaotic. I should help him. Howsoever bad a person may be, that's why it is person, persona, outside mask. Deep down everyone is divine. Each soul is potentially divine. He may have 99 bad qualities out of 100, but one good quality he will have. And great master will see that. He will not see the stone, he will see the statue, that one good quality. And based on that one single good quality, he will bring out that person. So Ramakrishna thought, let me do research. What is his good qualities? Now people have told me bad qualities, but he may be having good qualities. So for that, to understand a person, you have to live with that person. From outside you can't understand. So Ramakrishna develops contacts, goes more and more near him. Now this Girish Ghosh is little alert. This holy person is coming near me, is very dangerous. Because he never wanted to change. Many people used to preach him, don't do this, don't. But one day Ramakrishna landed in his house for lunch. Then he told, "Master, you are welcome. It's my good fortune you have come. Please have what you want. But don't ask me to change my ways. Everyone who comes preaches, don't drink. And alcohol has gone in my blood. Maybe I can leave other things, but I can't leave drinking." You can sit comfortable if you want. Backrest. Make yourself very comfortable. Please. So, Ramakrishna told, no, I am not asking you to change. We all want to change others. We don't want to change ourselves. In our camp, one person heard a wonderful lecture. He told, what a wonderful talk. It was about harmony between husband and wife, accept each other. So he told, how I wish my wife was here. He doesn't want to change, he wants his wife to change. So Ramakrishna told, no, I don't want to change your life. Carry on with your lifestyle. But give me one promise. From tomorrow, whatever you do, offer the fruit of that action to me. So he thought it's very simple. He told, okay, that's very simple, sir. Whatever I do from tomorrow, what I do, the fruit of that action I offer to you. So next day early morning, as we have made tea or coffee, he used to have first cup of wine. So he takes cup of wine and he remembers the promise. And this is what Ramakrishna watched. He found he may be very bad, but he has one single good quality. Normally Girish Ghosh will not promise. But once he promises, he will keep his word come what may be. So Ramakrishna wanted to make use of that one good quality. That's why he asked for that promise. So when he is about to drink the cup of wine, he remembers his promise. Oh, I drink this wine
And the fruit of this karma, this action, should go to that sage. He was like, God, my God, I can't do that. So he tried. In fact, deep down, every person who is bad, he wants to change. Even alcoholic wants to get rid of this habit because that is slavery. But now body is pulling, he wants to drink. So he tries to drink, ignoring his inner voice, but he could not. He could almost see the reflection of Ramakrishna in the cup of wine. He could not drink it. Then he leaves that out of frustration. That very moment, early morning, he rushes to his master Ramakrishna. Old man, you have cheated me. And that was a turning point in his life. Eventually, from that point, he became so great, he became as great a monk as Swami Vivekananda. Swami Vivekananda became popular because he went abroad. But as far as practices are, he raised himself to that level, or Ramakrishna brought him to that level. So a great artist does not see the stone, he sees the statue. Each soul is potentially divine. All of us have that divinity within. And we have to see that divinity outside. So Patanjali was such a great master. He thought, let me compile all the knowledge of yoga. Knowledge of yoga was scattered in various books and scriptures. Yoga Vasishta. Our entire yoga therapy has come from Yoga Vasishta. Like Gita is dialogue between Lord Krishna and Arjuna. When Arjuna was in conflict, Lord Krishna gives him counseling. Similarly, Rama was also in a conflict. Then Vasishta, the royal psychiatrist of those days, counsels him. The result is wonderful scripture, Yoga Vasishta. So yoga was in Gita, yoga was in Yoga Vasishta, in Upanishads, so vast ocean of scriptures. But this compassionate master Patanjali, to make us practice yoga, let me condense all the knowledge of yoga, bring all the knowledge of yoga at one place. What a tremendous task. Though mainly it is Raj Yoga oriented, but Patanjali has covered all the 4 yogas, as we will see. Bhakti Yoga is there, Jnana Yoga, path of knowledge is there, Karma Yoga is there. Depends upon how we proceed. He has given me only 3 half days. This is 3 months course in Prashanti Kutira. 3 months full-time course. But my idea will be to expose, to give you a glimpse so that you are motivated to go in depth by yourself. So we will have some selected sutras. So Patanjali collected all the knowledge from various scriptures, ocean of knowledge, Gagar mein Sagar, condensing. He has to condense it. And how to condense it? Put in form of aphorism, formula. The entire theory of relativity, E is equal to mc square. So matter can be converted into energy and vice versa. So he put in the form of formula, sutras. There was another purpose why Patanjali's knowledge in the form of sutra. Sutra means formula, aphorism, condensed knowledge. Sutra means thread. Literal meaning of sutra is thread. So you have garland, a rosary, a necklace. There are so many beads. How these beads are connected? Through hidden thread. So if you study Patanjali superficially, it will look unconnected sutras. But deep down there is a connection, hidden connection. There is a hidden knowledge. So you have to meditate. The best way to understand sutra is to meditate on them. When I meditate on a rose reveals itself in its totality to me. I will know everything about the rose. Like we have 5 koshas, layers and layers, till I go to the subtlest layer, Anandamaya kosha. The Prakriti, the nature outside has 4 layers, which Patanjali talks. So more deep I go into meditation within me, more deep
the subtlest layer is exposed to me. So best way to know about sutra is to meditate on them. Each sutra can be understood at various levels. A rose, even at superficial level, can be looked at from different angles. A person who makes scent, he look at rose, how much scent I can extract from it. A devotee will think, oh, what a wonderful rose, how nice it will look at the feet of Sai Baba. A girl will think, oh, this wonderful rose will look very nice in my hair. But a botanist will look at rose from the point of view of what is its floral diagram. A physicist will look at rose, combination of atoms and molecules, a bundle of energy. A yogi will look at rose, the combination of three gunas, tamas, rajas and sattva. A Vedantin will look at rose, a consciousness. This is also consciousness, I am also consciousness. So there are layers and layers. So as you go into sutras, sutras will reveal to you. One sutra itself will be very fascinating. So there are about 200 sutras, to be very precise, 196. Somewhere plus minus. Divided into 4 chapters. Chapter 1 is Samadhi Pada. To begin with Ashtanga Yoga, eightfold path of yoga, Samadhi is the last goal of yoga at this level. Samadhi is also for freedom, but from practice point of view, goal is Samadhi. So first chapter is called Samadhi Pada. Pada means step, chapter. So first chapter, like modern treatise, it gives condense what we are going to study. Various types of Samadhi. At this level, Samadhi is the last, but at higher level, Samadhi is the beginning of yoga. So there are various types of Samadhi which are mentioned in this chapter. First chapter gives answer to the question, what is yoga? The root of word yoga is yuj, Y-U-J. And each ancient language has roots of their words, Greek, Latin, Sanskrit. And each word can be interpreted in so many ways, 20 ways. If you see the dictionary, one word can have so many meanings. So the root yuj has 2 primary meanings. One is union, as we saw, feeling yourself united with the cosmos. So yoga is union. Another is yuj samadho. Another meaning of the root yuj is tranquility, peace of mind. Some adhi, dhi is intellect. Some tranquil, samadhi, tremendous tranquility. No vibrations. So what is yoga? That tranquility, that peace, that silence, that's ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शान्ति शान्ति शान्ति।
आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी अभी शिवमंगल भैया ने बताया, आज पातंजल योग दर्शन का इस व्याख्यानमाला का यह 41वां पुष्प है। बात आगे बढ़ाते हैं और अब हम जो पातंजल योग दर्शन का कुछ भाग जिससे हम पूर्व से परिचित है, ऐसा भाग यहाँ से आगे अब शुरू होने वाला है। साधन पाठ अर्थात पातंजल योग दर्शन के द्वितीय अध्याय का यह 28वां सूत्र आज लेने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से सारे साधक गणों को, योगाभ्यासियों को, मुमुक्षुओं को कुछ परिचित सा है ऐसा लगेगा। और वास्तव में हम लोग किसी न किसी रूप में, चाहे अभ्यास के रूप में, चाहे सुनने पढ़ने के रूप में, प्रत्यक्ष कृति के रूप में, साधना के रूप में, हम इन सूत्रों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिचित है। उसकी ओर बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यह देखा था कि यह जो प्रांत भूमि है प्रज्ञा की, वह 7 प्रकार की होती है, ये हमने देखा था। जरा सा उसको बताकर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक एक वाक्य में बताकर। ये जो 7 प्रेरणाएं हैं, इनको इसलिए भी समझना जरूरी है कि उन प्रेरणाओं को हम पार करेंगे तो फिर प्रज्ञा की जो भूमिका है वह साफ होती है, और फिर वह प्रज्ञा विवेक ख्याति में रूपांतरित कैसी हो, इस दृष्टि से इन सप्त भूमियों को जानना थोड़े में आवश्यक है। तो अपने को कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ प्राप्त हो ऐसा लगता है, उसे प्रेरणा की पहली भूमि या भूमिका भी आप कह सकते हो, सप्तदा भूमि में से वह है प्रेप्सा। लेकिन इससे उलट, और जिससे ऐसा लगता है कि इस चीज से दुख होगा, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य जो अच्छा लगने वाला है वही करने का प्रयास करता है, उसमें लगा रहता है, इसलिए वह हुई प्रेप्सा। लेकिन हमारे जीवन में दुख भी निर्मित होता है और वह हमें नहीं चाहिए, उससे अप्रीति भी होती है, उसका साथ द्वेष होता है या घृणा होती है, और उस कारण वह चीज या वह स्थिति या वह कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं हो ऐसा लगता है, उसे कहा गया है जिहासा। तो एक तरफ प्रेप्सा, एक तरफ जिहासा। जैसे अंधेरा और उजाला, जैसे शुभ और अशुभ, जैसे मंगल और अमंगल, इस रूप में हम उसको ले सकते हैं, तो प्रेप्सा और जिहासा। उसके बाद की जो भूमि है वह है कि हमें कुछ नया समझ में आना चाहिए, नया कुछ पता पड़े, तो ज्ञान की लालसा, नई जानकारी और आए, चाहे शास्त्रों के माध्यम से, चाहे दूसरों का अनुसरण करके, चाहे आप्त वचनों से, चाहे ईश वचन से, चाहे हमारे ही आसपास के लोगों ने कुछ कहा उनसे। तो जो ज्ञान लालसा है उसे जिज्ञासा अथवा जिज्ञासा ऐसा उसे कहते हैं। कुछ तो करना चाहिए, ऐसा जो सतत नित्य लगता है उसको कहते हैं चिकीर्षा। और जो गतकालीन अनिष्ट बातें थी उनके निमित्त से चित्त में उत्पन्न होने वाली जो खेद वृत्ति है उसे कहा गया है शोक। फिर आगामी समय में अपने पर कुछ संकट आ सकता है और उसके कारण अंदर एक विषन्नता सी लगती है
उसे कातरता भी कहते हैं, तो वह भय, यह भूमिका हुई या भूमि हुई, तो वह भय। और कितनी बार भी विषय सेवन किया, वस्तुओं का, साधनों का उपभोग लिया, उनके साथ संयोग हुआ, तो भी तृप्ति नहीं हो रही है, अतृप्ति, वह अतृप्ति नाम की भूमिका हुई। इस प्रकार जीव से जानियो पूर्वक, यानी जान से जानकर, समझकर, जो देहेंद्रिय आदि के जो व्यापार होते हैं, उनके मूल में, उनके बेस में, उनके नींव में, इनमें से कोई ना कोई एक प्रेरणा, कम से कम एक प्रेरणा, दो भी हो सकती है, सभी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक प्रेरणा रहती ही है। उसके बगैर इस जीवन में, इस संसार में देह और इंद्रिय द्वारा कोई भी कार्य हो नहीं सकता। और इसलिए यह समझकर हमने उसके जो दो भाग होते हैं, एक उसके अंदर से सूक्ष्म प्रेरणा और फिर प्रत्यक्ष कृति, इन दोनों में धीरे धीरे सुधार आते 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 जब हम पूरे तरीके से उसके अंतिम स्थिति तक पहुंचते हैं, तो फिर धीरे धीरे विवेक ख्याति का जागरण होता है और उससे जो सहज प्रेरणाएं हैं भीतर की, उनकी निवृत्ति होने लगती है। मतलब इन प्रेरणाओं के फिर हम अधीन नहीं रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, कोई प्रेरणा जगती है और हम उस प्रकार का कार्य तत्काल करने लग जाते हैं, तो प्रेरणा हम पर हावी होती है, न कि हम सोच समझकर, समझदारी से, विवेक से वह कार्य करते हैं। वह बुद्धि जो यथास्थिति समझ लेती है, जो जैसा है, जो वस्तु जैसी है उसकी यथार्थता समझती है, उसे ही प्रज्ञा कहा गया है। और जब यह प्रज्ञा जागृत होकर शुभ अवस्था की तरफ बढ़ती है, तब उसे विवेक ख्याति, ऐसी अवस्था उससे उत्पन्न होती है। और वह जो 25वें सूत्र में बताया गया, वह कैवल्य अवस्था का वह स्वरूप है। और यही 26वें सूत्र में, अभी थोड़े पीछे, यह हान के उपाय के रूप में, अर्थात कौन सी, तो प्रज्ञा का जागरण, उससे निर्मित विवेक ख्याति, उससे पूर्णतः मोक्ष, मुक्ति की जो अवस्था की जो प्रारंभिक स्थिति है, वही हान का उपाय है। यही 27वें सूत्र में बताया है। अब हान का जो उपाय बताया गया है, इस प्रज्ञा की ये जो सप्तदा भूमि इस रूप में, तो विवेक ख्याति चित्त में जब उत्पन्न होती है, तो वह किन किन साधनों से उत्पन्न होती है, यह 28वें सूत्र में पतंजलि महामुनि इस साधन पाद के, अर्थात यह द्वितीय पाद के 28वें सूत्र में बताते हैं। वे कहते हैं, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याति। योगा के जो अष्टांग अनुष्ठान है, उनके अभ्यास से, अर्थात हान के उपाय के रूप में, जिससे विवेक ख्याति निर्मित होनी चाहिए, जो मोक्ष स्थिति की तरफ या अपरावर्ग की तरफ ले जाती है, वह कैसी प्राप्त होती है, तो योग का जो अष्टांग अनुष्ठान है वह करने से। उससे क्या होता है, तो अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धियों का, मतलब चित्त की अशुद्धियों का क्षय उससे हो जाता है।
और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का जो आलोक है वह फैलने लगता है, वह अंदर भी और बाहर भी, तब विवेक ख्याति दृढ़ होती है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। तो योग की जो यम नियमादि जो 8 अंग है, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में जानते हैं, वे उनका अनुष्ठान करने से चित्त की सारी अशुद्धियों का क्षय होता है और ज्ञान शक्ति प्रदीप्त हो जाती है और उसका पर्यवसान चित्त में विवेक ख्याति उत्पन्न होने में होता है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामान्यतः जब योग करना है या योग की प्रक्रिया अपनानी है तो सामान्यतः अष्टांग योग का राजयोग के रूप में या भारतीय मानस शास्त्र के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है, और वह करने से ही पतंजलि योग दर्शन को हमने अनुसरण किया और उससे ही चित्त की शुद्धि होगी और वही लाभदायक है और वही करने का है, वास्तव में वही करना होता है, ऐसी हम सब लोगों की मान्यता है। उसका जो अनुष्ठान, उसका जो आधार है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो योग के यम नियमादि 8 अंग इस पाद में आगे अगले सूत्र में बताए गए। उनका सत्कार पूर्वक दीर्घ काल, नैरंतर्य ऐसा शब्द प्रयोग पूर्व में आ चुका है, दीर्घ काल और किसी प्रकार का कोई खंड नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार का कोई आलस आदि जहाँ नहीं, उसका यदि अनुष्ठान करते हैं तो चित्त की जो अशुद्धियाँ है उनका धीरे 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 क्षय होने लगता है, क्षय होता जाता है। चित्त के जो घटक है, हमने पूर्व में ही देखा है कि चित्त यह 3 चीजों से मिलकर बना है, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं, इनसे ही ये 3 घटक है चित्त के, इनसे ही चित्त की निर्मिति हुई है, यह उपादान है चित्त के, है ना। इन 3 गुणों से जिनका प्राधान्य चित्त में होता है, उसके अनुसार यदि सत्व गुणों का प्राधान्य है तो सात्विक, यदि रज गुणों का प्राधान्य है तो राजसिक, यदि तम गुणों का प्राधान्य है तो तामसिक। क्या? तो वृत्तियां चित्त में उत्पन्न होती है, और वृत्तियां क्या है ये हम पहले ही देख चुके हैं, और उसके अनुसार चित्त करता रहता है। लेकिन इसके अनुसार अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है, इनको ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियां जो उत्पन्न होती है, इनको कहा गया है शास्त्र में, जो सात्विक है इनको शांत वृत्तियां कहा गया है, जो राजसिक है इनको घोर वृत्तियां कहा गया है, और जो तामसिक है, तामस वृत्तियां हैं, इनको मूढ़ वृत्ति ऐसा कहा गया है। तो यह शब्द भी थोड़ा सा हम इनसे परिचित हो जाए। तो शांत, घोर और मूढ़, इस प्रकार की 3 वृत्तियां बताई गई है। तो सत्व से शांत की उत्पत्ति, राजस से घोर की उत्पत्ति और तामस से मूढ़ वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। गीता में एक बात आती है, अमानित्वादि गुण विषयक वृत्ति। अमानित्व मतलब किसी प्रकार से कोई मान यहाँ जहाँ पर नहीं है, ऐसी अमानित्व की जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को शांत वृत्ति ऐसा कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, असूया अर्थात ईर्ष्या वगैरह, दंभ, मत्सर आदि जो वृत्तियां हैं वह घोर वृत्तियां है। ये जो षड्रिपु है, शत्रुवत, यह सारे घोर वृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। और प्रमाद, आलस्य, जड़त्व, मूढ़त्व, निद्रा, दुश्चित्तता आदि जो वृत्तियां हैं,
वह मूढ़ श्रेणी के मूढ़ वृत्तियां वह चित्त की कही गई है। इनमें से रज और तमस मूलक घोर और मूढ़ वृत्तियां चित्त में जो होती है वही चित्त की अशुद्धि है। सात्विक जो वृत्तियां हैं वह अशुद्धि की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन जो राजस और तामसिक अर्थात जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, अप्रमाद, आलस्य, जड़त्व, मूढ़त्व, निद्रा, दुश्चित्तता आदि, यह जो तामसिक है, यह दोनों ही रजस तमो मूलक घोर और मूढ़ वृत्तियां चित्त की जो है वह चित्त की अशुद्धि है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि यह सूत्र ही बता रहा है कि अष्टांग योग के अनुष्ठान से चित्त की अशुद्धियां दूर होती है, तो यह चित्त की अशुद्धियां है। और चित्त का जो उपादानभूत घटक जो त्रिगुण है, उनमें प्रधानोपसर्जन भाव यदि रहता है तो तदनुसार चित्त में शांत, घोर अथवा मूढ़ वृत्ति उत्पन्न होगी ही। यदि चित्त में यह दोनों रज और तम ये गुण यदि उत्पन्न होते हैं और ये प्रधानता से इनका उपसर्जन होता है, तो फिर यह शांत, घोर व मूढ़ आदि वृत्तियां चित्त में उत्पन्न होती है। सामान्य जो मनुष्य होते हैं, सामान्य मानव जो होते हैं, जिनको प्राकृत संसारी जन कहा गया है, उनके चित्त में रज और तमोगुण प्रधानता से वह रहता है और इसलिए घोर और मूढ़ वृत्तियां विपुलता से, मतलब प्रचुर मात्रा में उनके भीतर वह रहती है, वह अपना घर कर लेती है ना। उसी प्रकार जिनका चित्त और इंद्रिय यह स्वभावतः बहिर्मुख है, बाह्य दौड़ रहे हैं और लगातार उनकी दौड़ बाहर की तरफ चलती रहती है, उनका भी यह घोर और मूढ़ वृत्तियों का आलंबन अभी है और इनका आधिपत्य राजसिक और तामसिक चित्त की वृत्तियों के कारण है, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर क्या करना? तो योगांग का अनुष्ठान करके, मतलब क्या? तो ये जो बाहर दौड़ने वाली जो वृत्तियां हैं, मतलब जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के माध्यम से आदि भाग रहे हैं, उनको थोड़ा सा रोक लगाकर, निग्रह कर संयम की आवश्यकता है। तभी चित्त की जो अशुद्धि है उनसे तो यह जो घोर और मूढ़, ये जो आलस्य, जड़त्व, मूढ़त्व, निद्रा, दुश्चित्तता अथवा काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, असूया, दंभ, मत्सर आदि, यह उससे कुछ अंश में दूर हो सकती है। तो संयम यह करने से यह संभव, और संयम यह सत्व का गुण है। संयम यह मूलतः सत्व का गुण है, सत्व प्रधान है। तो संयम साधने से ही वह जो राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं, इन पर रोक लगाना या नियंत्रण करना यह संभव है, और यह संयम सत्व का गुण है। इसलिए योगानुष्ठान जब करते हैं या किया जाता है तो उससे संयम शक्ति बढ़ती है, और संयम शक्ति बढ़ने के कारण योगाभ्यास और सुकर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सत्व प्रधानता है, तो सात्विक गुण जागृत होते हैं, संयम और प्रबल होता है, योगानुष्ठान और होता है, और उससे पुनः जो संयम और फिर उससे सात्विक वृत्तियां यह पुनः, क्योंकि सात्विक वृत्ति यही वास्तव में चित्त की शुद्धि है या शुद्धावस्था है, ऐसा कहा गया है। और इसलिए संयम पूर्वक जो योगाभ्यास किया जाता है वह चित्त की घोर और मूढ़ वृत्तियां उसके कारण धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है। जितना जितना संयम प्रबल होता है
उस संयम से जितना जितना धीरे धीरे अंदर ये राजसिक और तामसिक अवस्था थोड़ी कम होती है और इधर योगानुष्ठान बढ़ाने में भी वह प्रेरक होता है। वह जितनी मात्रा में बढ़ता है उतनी मात्रा में चित्त शुद्ध होता जाता है और अशुद्धि का क्षय होने के लिए संयम उससे और दृढ़ होता जाता है। ऐसी संयम की चित्त की अशुद्धियों का क्षय करने के लिए आवश्यकता होती है। तो नित्य नियम से केवल विहिताचरण के रूप में स्नान, संध्या वंदन, सूर्योपासना, देव पूजा, स्तोत्र पाठ आदि का आचरण करने से साधकों के अंदर यह संयम शक्ति नित्याभ्यास से जागृत होती है। इससे भी होती है क्या? तो नित्य नियम से मात्र मैं नहाने के बाद 5 मिनट पूजा करूंगा, मैं नहाने के बाद कुछ समय के लिए गीता के मान लीजिए 10 श्लोक, या मैं जब विवेकानंद केंद्र में आने के पूर्व घर में था तो मैं ये प्रतिदिन नहाने के बाद गीता के श्लोक पढ़ता था। वह अशुद्ध ही होते थे क्योंकि कन्याकुमारी जाने के बाद फिर वो अनुस्वार और विसर्ग इसका उच्चारण सीखने का सौभाग्य मिला। उसके पूर्व तो अशुद्ध ही पढ़ते थे, लेकिन मैं एक पेज पलटना, इतना भर गीता के श्लोक और उनका अर्थ प्रतिदिन मतलब वर्षानुवर्ष मैंने वह पढ़ने का प्रयास किया था स्वप्रेरणा से। तो ऐसे अनेक लोग करते हैं, स्वप्रेरणा से करते हैं, किसी की देखा देखी, किसी का सुनकर, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ करना चाहिए तो हम कर लेते हैं। प्रतिदिन हम कोई स्तोत्र बोलते हैं, टीका लगाते हैं, धूप नैवेद्य आदि करते हैं, घंटी बजाते हैं, माला फेरते हैं। यह सारा आचरण साधक के अंदर संयम शक्ति बढ़ाने के लिए यह जो नित्याभ्यास है उसके कारण जागरूक होती है संयम शक्ति इस नित्याभ्यास से। खाना पीना आदि जो नित्य व्यवहार करने की ओर मनुष्य मात्र की सहज प्रवृत्ति है, लेकिन इस सहज प्रवृत्ति को थोड़ी रोक लगाकर यह विहित कर्म जो अभी बताया, जैसे स्नान, संध्या वंदन, सूर्योपासना, मैं प्रतिदिन आसन करूंगा, मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, मैं इतना प्राणायाम करूंगा, मैं प्रतिदिन घूमने के लिए जाऊंगा, मैं सूर्योदय के समय सूर्य की ओर देखकर प्रातः करूंगा, मैं सूर्यास्त के समय सूर्य का दर्शन करूंगा, आदि आदि बातें केवल खाने पीने में न लगकर यदि इनको नित्य व्यवहार में यदि हम लाते हैं, उन बातों को थोड़ी सी रोक लगाकर, इसके लिए तो धैर्य तो चाहिए। लेकिन श्रुति कहती है कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अमृतत्व की इच्छा करने वाला कोई एकाध धीरवान धैर्यवान पुरुष चक्षु आदि इंद्रिय अपने विषयों से उनको रोककर नियंत्रित कर वह प्रत्यगात्मा देखता है, अर्थात अपने अंदर वह धीरे धीरे उतरने लगता है और अंतरंग की ओर वह बढ़ने लगता है। ऐसा नित्य कर्म का आचरण अच्छे से समझकर ध्यान पूर्वक लक्ष्य पूर्वक यदि करते हैं तो यदेव विद्या करोति तद्वीर्यवत्तरम भवति। जब इस विद्या को करते हैं, जितनी जितनी करते हैं उतना उतना वीर्य अर्थात उसका विशेष फल या आंतरिक श्रद्धा और आंतरिक बल बढ़ाने का कार्य भवती होता है, ऐसा श्रुति कह रही है, श्रुति कह रही है ना। इससे हम लोगों ने यह समझना चाहिए कि यह जो विहिताचरण है, यह करने से
मन में धैर्य और संयम शक्ति जागृत होती है। और ये सामान्य जो कार्य होते हैं, खाना पीना कपड़े आदि, इसमें लगे रहने की बजाय यदि हम इनकी ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे, जैसे श्रुति कह रही है, वीर्यवत्तर होने से विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन अर्थ शून्यता से किया हुआ कोई कार्य, जैसे कसरत है, यदि वह करने से और श्रद्धा पूर्वक करने से, नित्याचरण आदि, तो भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो वीर्यवत, यानी उसका शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र वचन है। वीर्यवत्तर, है ना। तो वीर्यवत्तर, तो यदि नहीं भी हुआ तो भी वह करने से हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए अर्थ ज्ञान शून्य करना इससे कई गुना अच्छा है। अपनी बाहरी जाने वाली प्रवृत्तियों को रोक लगाकर, संयम अपने जीवन में लाकर ज्ञान पूर्वक यह कार्य करना चाहिए। जैसे जैसे संयम शक्ति जागृत होती है और योगाभ्यास का सहकार्य वह लेता है अपने जीवन में, उसको लागू करता है, संयम शक्ति और तीव्र गति से, द्रुत गति से बढ़ने लगती है। और उसके साथ ही स्वतः ही सारे सत्व गुण बढ़ने लगते हैं। यह इसकी विशेषता है। तो योगानुष्ठान से संयम शक्ति, संयम शक्ति से योगानुष्ठान, और इससे सत्व गुणों का विकास। इस दृष्टि से यम नियम आदि का अनुष्ठान करने से सत्व गुणों की बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन इसके सिवा चित्त के सत्व गुण के वृद्धि के कारण जो रज और तम गुण अभिभूत होते हैं, वह अभिभूत होते हैं, वह धीरे 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 क्षीण होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। भगवत गीता में आया है, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, ऐसा बताया। रज तम आदि इनका अभिभूय होता है और सत्वम भवति भारत, हे भारत, है अर्जुन, सत्वम भवति, और सत्व अवस्था इससे बढ़ती है, ऐसा भगवत गीता में भी बताया गया है। चित्त के जो उपादान भूत, मतलब निर्मित के कारण जो उपादान कहा गया है, वे घटक जो त्रिगुण है, उनमें से रज और तमो गुणों का प्राबल्य सामान्य जीवन में तो सामान्य मनुष्यों में रहता है, और उस कारण चित्त में, जैसा पूर्व में बता चुके हैं, घोर और मूढ़ वृत्तियों का प्राबल्य होता है, और वही चित्त की अशुद्धि है। लेकिन योग अनुष्ठान करने से यह अशुद्धि धीरे धीरे दूर होती है। तो एक तरफ योगानुष्ठान से सत्वगुण बढ़ता है, और दूसरी तरफ रज और तम आदि दोष जो है, और तन्मूलक घोर और मूढ़ वृत्तियां चित्त से दूर होने लगती है। यही चित्त की अशुद्धियों का क्षय है, अर्थात चित्त की अशुद्धियों का नाश है। ऐसा अशुद्धि क्षय जैसा जैसा होता जाता है, वैसे वैसे चित्त में ज्ञान ज्योति प्रदीप्त होने लगती है। अब आए पतंजलि उस सूत्र के जो मूल भाव है, उस पर यदि हम देखें तो क्या कह रहे हैं, जितना अशुद्धि का क्षय होता है योग अनुष्ठान करने से, और रज और तम, इनका यह जो मल है, यह दूर होने से घोर और मूढ़ वृत्तियां इनका नाश होकर सत्व वृत्तियों का जागरण होने से क्या होता है, जो अशुद्धियों का क्षय जैसे जैसे होता है, वैसे वैसे चित्त की ज्ञान ज्योति प्रदीप्त होने लगती है। और पिछले सूत्रों में जैसे बताया था, प्रज्ञा का विकास, कौन सा विकास, जैसे बताया था ना, क्या क्या बताया था उसमें,
उसमें बताया था जैसे प्रेप्सा, या प्रेप्सा के बाद बताया था अप्रीति जिससे होती है, वैसा जिहासा और फिर चिकित्सा आदि आदि, यह सारे धीरे 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 घटने लगते हैं, प्रज्ञा का विकास होने लगता है। जैसे पुराने दिनों में लालटेन होती थी, तो लालटेन जब जलानी होती थी तो उसके पहले क्या करते थे घर के लोग, बच्चों से तो नहीं कराते थे वो काम, लेकिन जो घर का कोई बड़ा व्यक्ति हो या प्रौढ़ व्यक्ति हो, वो क्या करता था, उसकी जो कांच की वो जो बाहर का वो होती थी एक शील्ड सी, जिसके कारण हवा से वह ज्योति बुझे ना या हिले ना, तो वो ऊपर से लगानी होती थी, उसको साफ करना पड़ता था। तो उसके अंदर राख डालकर, कपड़ा डालकर उससे मला जाता था, तो वह कांच साफ हो जाती थी। जब तक वह कांच काली है पहले दिन के उपयोग करने के कारण, तो वह उसका जो उजाला है वह ज्योति का बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए पहले उसको साफ करके फिर उसको उसकी ज्योति के ऊपर चढ़ाई जाती थी। जैसे ही ज्योति के ऊपर चढ़ाई जाती थी तो ज्योति सुरक्षित भी होती थी, और उसका जो प्रकाश है, उसकी जो दीप्ति है उस ज्योति की, वह अधिक प्रकट होती थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उस कांच का पूर्णतः स्वच्छ होना, साफ होना, यह बहुत जरूरी है। निर्मल होना यह बहुत जरूरी है। जब वह साफ हो जाती है तो वह भीतर की ज्योत एकदम स्पष्ट, बिल्कुल जैसे बीच में कांच है ही नहीं, वही है, ऐसी वह दिखाई पड़ती है। और उसका प्रकाश बिल्कुल उलीच कर बाहर आता है। मराठी में उसके लिए शब्द है उफाळून। जैसे वह प्रकाश उफाळून बाहर है, तो इस प्रकार तो कांच से वह बाहर आता है। ऐसा ही योग अनुष्ठान से चित्त के ज्ञान ज्योति का ऐसा ही प्रकाश बाहर आने लगता है। तो चित्त की रजतम मूलक अशुद्धि जैसे जैसे कम होती है और जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ते हैं, वैसे वैसे चित्त की प्रज्ञा की ज्ञान दीप्ति बढ़ती जाती है, और वह प्रज्ञा पदार्थों को अधिक यथार्थता से वह समझने लगती है। वह अधिक यथार्थता के साथ उसकी जानी या उसको जानने लगती है। ऐसे प्रज्ञा को ही ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। तो चित्त की सारी अशुद्धियों का क्षय होने से प्रज्ञा जब जागृत होती है और सारे वस्तुओं को, संसार को यथार्थता से जो समझने लगती है, जानने लगती है, ऐसी प्रज्ञा को ऋतंबरा प्रज्ञा ऐसा कहा गया है। तो इस पाद के 48वें सूत्र में प्रथम पाद के यह बताया गया है, वह अपन पहले ही देख चुके हैं। इस प्रकार योगानुष्ठान से प्रज्ञा ज्योति प्रदीप्त होती है, और प्रज्ञा प्रदीप्त होने के कारण योगाभ्यास और सुकर होता है। पहले योगाभ्यास किया तो चित्त शुद्धि हुई, संयम बढ़ा, संयम से और योगानुष्ठान हुआ और सारा मल अशुद्धियां दूर हुई, उससे प्रज्ञा जागृत हुई, और प्रज्ञा से फिर धीरे 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 ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हुई। तो क्या हो रहा है यह, उससे उसकी मिठास भी बढ़ती है और धीरे धीरे वह मार्ग सुकर भी होने लगता है, और ऐसा लगता है कि और करना चाहिए, और तो इसमें उतरना चाहिए। अरे ये तो बड़े अच्छे अनुभव है, बड़ा अच्छा है, बड़ी शांति लग रही है। तो यह प्रज्ञा जितनी इतनी प्रदीप्त होती है, योगाभ्यास और सुकर होने लगता है, और उसकी मिठास बढ़ते बढ़ते
परस्परम भावयन्तः, भगवद गीता कहती है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, ऐसा प्रकार इससे घटित होने लगता है। परस्परम भावयन्तः, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, पहले से दूसरा, इस प्रकार श्रेय की अवस्था धीरे धीरे वहाँ पर निर्मित होती है। इस प्रकार साधक उसके चित्त में असंप्रज्ञात समाधि में यह प्रज्ञा ज्योति जो प्रदीप्त हो गई है, ऋतंबरा प्रज्ञा, वह कैवल्य प्राप्ति में तक ले जाती है और यही विवेक ख्याति है। इसलिए यह 28वें सूत्र में क्या बताया, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याति। इससे ज्ञान दीप्ति की अवस्था होने से ऋतंबरा प्रज्ञा जागरूक होकर विवेक ख्याति में वह पर्यवसित हो जाती है। इसलिए इस अष्टांग अनुष्ठान को विवेक ख्याति का साधन है, ऐसा कहा गया है। यह अष्टांग योग अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं। वे कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानि समाधि, यह सारे अष्ट अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग अर्थात 8 अंग है। काय के ये योग के योगांगानुष्ठान, यह अनुष्ठान करने के ये 8 अंग है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। इनका विवरण थोड़े में हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग परिचित है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से जो पूर्व के 5 है इनको अंतरंग योग, इनको बहिरंग योग ऐसा कहा गया है। और अगले जो 3 है धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें अंतरंग योग ऐसा कहा गया है। तो इसलिए जो योगी साधक होता है, जो अनुष्ठान करता है योग का, वह इनमें से कोई एक चीज भी ले सकता है या इन सभी का अभ्यास एक साथ कर सकता है। लेकिन कभी कभी इनमें से कुछ अंग महत्वपूर्ण लगते हैं, कुछ अंग महत्वपूर्ण नहीं लग सकते, और यह स्वतंत्रता भी साधक को, मुमुक्षु को दी गई है। उदाहरण के लिए यम का अनुष्ठान करना ही चाहिए, नहीं करने से साधक योग भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन नियम का अनुष्ठान जितना संभव है उतना करना चाहिए। बिल्कुल पूर्णतः वह सारे के सारे उसके उपांग आदि जो आगे चलकर आएंगे वह पूर्णतः करना ही है, ऐसा नहीं करने से भी चले। क्योंकि क्या होता है, जब यम का ही पूर्णतः पालन करेंगे वे अपने आप कुछ कुछ जुड़ जाते हैं और व्यक्तित्व में साधक के अंदर वे आने लगते हैं और उनका महत्व उनके अंदर बढ़ने लगता है, वह वैसा व्यवहार करने लगता है। तो यह होता है। फिर जैसे आसन, प्राणायाम, इनका अनुष्ठान अपने अपने प्रकृति मान के अनुसार करना चाहिए, लेकिन प्रत्याहार करना ही चाहिए। और उसी प्रत्याहार को हम सामान्यतः जब यम, नियम, आसन आदि आदि बताते हैं, प्रत्याहार नहीं बताते, प्रत्याहार ही छोड़ देते हैं। प्रत्याहार हमें कुछ कठिन भी लगता है, हम प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे आगे चलकर, लेकिन यह प्रत्याहार करना ही चाहिए, ऐसा एक प्रारंभिक आज हम भूमिका में देखते हैं। तो यह जो पहले 5 बहिरंग साधन है, यम, नियम, आसन,
प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको बहिरंग साधन कहा गया है। और अगले 3 अंतरंग। इस कारण अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करना ही है, करना ही है। बहिरंग में से आपने नियमों का पालन नहीं किया, कोई बात नहीं। आसन और प्राणायाम जैसी आवश्यकता है, अपनी प्रकृति देखकर, अपनी आयु देखकर, अपनी बाकी अन्य बातें देखकर उसको करें, लेकिन प्रत्याहार का अनुसरण करना ही है। और धारणा, ध्यान और समाधि, तो इसका मतलब क्या हुआ? यम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अंग, यह 5 अंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इनका अनुष्ठान होना ही चाहिए, इनका अनुष्ठान पूर्णत्व के साथ होना चाहिए। तो नियम, आसन और प्राणायाम, यह अंग योग के लिए पोषक है, इसलिए अनुष्ठेय तो वो है, लेकिन उनसे योग की प्रगति सर्वस्वी इन पर अवलंबित नहीं है। इसलिए साधक ने कुल मिलाकर अंतर्बाह्य परिस्थिति जैसी होगी उसके अनुसार यावच्छक्य उनका आचरण, किसका? तो नियम, आसन और प्राणायाम, इनका करना चाहिए। और बाकी यह जो 5 है, यम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो ये जो अष्टावंगानी, ये जो 8 बातें अनुष्ठान के लिए पतंजलि महामुनि ने योगांगानुष्ठान के लिए दिए, इनमें से यह 5 बातें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आसन, प्राणायाम कोई कम महत्वपूर्ण थोड़ी है, यम आदि वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे कई गुना अधिक यह अंतरंग योग का जो भाग है, नियम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जो साधक को आगे बढ़ाती है। तो यह फिर यम कौन से है, फिर नियम कौन से है, आदि आदि पतंजलि महामुनि आगे बताते हैं। उसके लिए 30वां सूत्र है, वह हम आगे चलकर, या कल होगा व्याख्यान तो कल देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। प्रथम सत्र यही प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। 2-4-5 मिनट के लिए शांत बैठ लेते हैं, चेहरा शांत कर लीजिए। अभी जिस स्थिति में हम सब लोग हैं, उस स्थिति में तत्काल प्रसन्नता, तत्काल शांति, तत्काल रिलैक्सेशन, तनाव रहितता, तत्काल विश्रांति, तत्काल नीरवता की अवस्था, जैसे भीतर से निरंतर प्रशांत वाहिनी की अवस्था हो जाए, शांत शांत। बस सोचना और हो गए, ऐसी स्थिति बनाइए। वह है प्रत्याहार। बाहर की चीजों से मन को एकदम से खींच लेना। कुर्मोंगानीव सर्वशः, कुर्म की भांति, जैसे वह अपना सिर
अपनी पूंछ, अपने चारों पैर अंदर खींचकर कवच के अंदर सुरक्षित कर लेता है। कोई बाहर के संकट की संभावना या प्रतिकूल परिस्थिति की संभावना को देखकर ठीक उसी प्रकार हमने अपनी सारी इंद्रियां भीतर समेट लेनी चाहिए। चित्त का बाहरी व्यापार समाप्त कर, इसके लिए संयम की आवश्यकता, इसके लिए चित्त की अशुद्धियों का क्षय करने की आवश्यकता, उसके लिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विवेक ख्याति और अंतरंग योग की सहायता से भीतर उदित होती हुई शांति का मीठा मीठा स्वाद खूब प्रसन्नता रखिए चेहरे पर, मन में जैसे आनंद से भर गए। आनंद ही आनंद, शांत। बिल्कुल मन को इधर उधर जाने ही नहीं देना, पूरे तरीके से सजग। ओम शांति शांति शांति।